How do you keep your energy levels high during long training sessions? Everywhere is energy, right? In universe you can say it's all about energy. तो कुछ आप Red Bull, Glucon C ये suggest करेंगे या worst thing to find in your pocket? Even slips. First celebrity crush. We used to see Karishma Kapoor that time. So nowadays parent and child relationship, that's an important topic to be discussed. Nowadays is something parents को लगता है कि हमारी अपनी भी तो एक लाइफ है, तो बच्चे की पेरेंटिंग तो हो ही रही है, आप नहीं कर रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया कर रहे हैं. What should be the mindset of a teacher? आप परफेक्ट नहीं हो सकते. इट्स ओके अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता. If someone has only 10 minutes for self improvement, what would you suggest them? तो 10 मिनट में तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि बस आप इतना भर चुके हो जो 23 घंटे 50 मिनट में खुद को, 10 मिनट में आप अपने आप को सिर्फ खाली कर लीजिए. Welcome again to the Voice of Leadership podcast, where we bring you the minds that move, shake, and inspire. Today we have a force of motivation, Mr. Sameer Rathi. He's not just a life coach. He's a game changer, a mentor to millions of people, and a master at unlocking human potential. With 14 plus years of transforming lives through powerful words and unstoppable energy, Sameer sir has trained over millions of people across the country. From leadership to life skills, his impact is undeniable. So without wasting time, let's get started, because beyond the stage, what drives him, what fuels his passion, I'm super excited to know about it. Let's start. Welcome sir to the show. Thanks that you are here. And I'm really excited. In fact, all our viewers are super excited to know more about your life, your journey, and the kind of, as a coach, what you are, propagating to the audience and viewers. So, we all are really, really excited to know about that. So, let's start this. So, my first question for you is, let's start with this transition from being an engineer to an inspirational, speaker and edu trainer. So, what inspired you to do that? Very nice question, Amita. The very first thing about being an engineer, it's all about education. Okay. It was not my decision to take admission in engineering. Okay. It was by chance, you can say, not by choice. I realized I got some opportunities when I was pursuing my engineering. So I got some opportunities to address people, to motivate people. तो at that moment I realized something कि ये जो आप स्टेज पर जाते हैं और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ से मुझे किक मिलती थी. That spark one कि this is something I love to do. So जो कंसीव हुआ थॉट टू बी एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, ये सबसे पहले वहाँ से हुआ जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली. सेकंड, उसके बाद जब आप स्टेज से नीचे उतरते हैं, आप एक सेशन ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपको लोग मिलते हैं वापस विद देयर फीडबैक्स कि उस सेशन से उनकी लाइफ जो है वो अपग्रेड हुई, उनको ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा, उन्होंने अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट किया, तो उनकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में है. सो दीज टाइप ऑफ फीडबैक्स, ये मुझे इंटरनली बहुत कनेक्ट फील हुआ, बिकॉज इट इज़ समथिंग टू हेल्प पीपल, टू सपोर्ट पीपल. तो यहाँ से नरिशमेंट हुआ उस थॉट का टू बी एन इंस्पिरेशनल स्पीकर. बट योर क्वेश्चन लाइक दैट, फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, कंप्लीटली एक चेंज हुआ. तो वो जो स्टेम्ड हुआ कि मुझे इंस्पिरेशनल स्पीकर ही बनना है, दैट वाज समथिंग टू रियलाइजेशन ऑफ दिस थिंग कि आप कुछ भी, कोई मैसेज अगर आप पब्लिक को कन्वे कर रहे हैं, राइट, तो क्या वो सबसे पहले आपकी अपनी लाइफ का एक पार्ट है? क्या आपकी वो खुद की अपनी एक हैबिट में है, आपके अपने कैरेक्टर में है, जो आप लोगों को एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं? तो फाइनल फेज में हर एक वो स्पीच, हर एक वो टॉपिक यू कैन से, वो मेरे लिए काम करना शुरू हो गया. इट वर्क्स फॉर मी. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बीइंग एन इंस्पिरेशनल स्पीकर वाज कि वो चीज़ मेरे लिए काम कर रही थी. सो इट्स ऑल अबाउट, मैं नॉर्मली से इस तरीके से समझता हूँ अपने लिए कि पहले थॉट कंसीव हुआ, फिर उसे नरिशमेंट मिली क्योंकि वो फीडबैक्स मिलने लगे, और फाइनली मैंने स्टैम्प किया कि नहीं, मुझे इसी तरह से जाना है, क्योंकि वो चीज़ मेरी अपनी लाइफ को एक डिफरेंट लेवल पर लेकर जाने लगी. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ऑल्सो. आई वांट टू ऐड सम पॉइंट्स हियर. मोटिवेशन इज समथिंग कि आप लोगों को बाय गिविंग सम स्टोरीज एंड एग्जांपल्स आप लोगों को मोटिवेट करते हैं. इंस्पिरेशन इज समथिंग कि जो चीज़ आप लोगों को कन्वे कर रहे हैं, राइट,
जो मैसेज आप पब्लिक को दे रहे हैं, वो सबसे पहले आपकी अपनी जिंदगी का हिस्सा है. Okay. You are a role model for that, right? Absolutely. So that's why, yes, I am a motivational speaker. I can motivate people, but inspirational speaker is something above than that, Okay. right? It's a long lasting impact of inspirational talks. So that's why this is something, the transition from being an engineer to an inspirational speaker. Okay, that's interesting because I think you need a lot of, yes, you aptly said that there is a difference between motivation and inspiration. Inspiration is all around us, Right. but how to take that, how to elicit that, and absorb that content, absorb that inspiration, that depends again on you. So you Exactly. need to motivate also because आजकल तो बहुत ही सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बट इंस्पिरेशन इज डेफिनेटली डिफरेंट. Right. सो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से उसको डिफरेंशिएट किया है, एंड थैंक यू सो वेरी मच. Okay, my next question for you is how do you keep your energy levels high during long training sessions? About energy, being an inspirational speaker, I believe in this, strongly believe in this, Okay. because everywhere is energy, right? In universe, you can say it's all about energy. So जब आप सेशन आप हैं, स्टेज पर आप हैं, तो जो लिसनर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है, वो तो सिर्फ सुनने के लिए आपको बैठी है. Absolutely. वो तो सिर्फ चुपचाप बैठे हैं. अब आप उनको कुछ क्या समझा रहे हैं, क्या आप उनको सुना रहे हैं, दैट्स अप टू यू. तो एक स्पीकर की एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जो पूरा माहौल है वहां पे, उसको जीवंत रखना है, उसमें कुछ जान फूंकनी है, उसमें चेतना होनी चाहिए, राइट? अब वो काम विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज it's all about transferring of energy from one body to another. Yes. Transferring of enthusiasm from one body to another, मैं ये कहना चाहूंगा. बिकॉज एनर्जी जब डायरेक्ट नहीं होती है तो एक्साइटमेंट होती है, बट जब एनर्जी डायरेक्ट होती है, चैनलाइज होती है, तो वो एंथुजियाज्म बन जाता है. Okay. क्योंकि सिर्फ अगर आपके पास शब्दों का एक ढेर है, यू हैव शब्द जाल है आपके पास, और वो सूखे शब्द हैं, वो मृत शब्द हैं, अगर आप बिना ऊर्जा के आप उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाहे वो 1 घंटे का सेशन है, चाहे फिर वो 3 घंटे का सेशन है, तो ये आपके लिए एक मैंडेट हो जाता है कि आपका एनर्जी लेवल उस पीक पर होना चाहिए कि आपको वो जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, वो ट्रूली डिलीवर फिर होना भी चाहिए. तो उसके लिए एनर्जी तो सबसे दैट्स द फाउंडेशन. Okay. तो वो तो मतलब इट इज समथिंग, इट्स नेचुरल, एंड आई एम सो ब्लिसफुल एंड ग्रेटफुल ऑल्सो फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा नेचुरल भी है इन माई सेशंस. Okay. कि आई फेल्ट कि ये होता है, मतलब जितने भी फीडबैक्स मुझे मिलते हैं आफ्टर द वर्कशॉप, ये वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक जो हमेशा मुझे हर सेशन में मिलता है कि द एनर्जी लेवल्स वर लाइक ऑन द पीक Okay. up to the end of the last minute as well. So I believe in all this energy something, तो वो जरूर होना चाहिए अगर आप सेशन में हैं तो. तो कुछ आप रेड बुल, ग्लूकॉन सी ये सजेस्ट करेंगे या मतलब इट्स इनबिल्ट इन यू? The thing is that this is my passion, हाँ. right? Right. When you are doing what you love to do, तो आपका एक फेस पे वो एक स्पार्क, वो एनर्जी, वो एक इनविजिबल सोर्स से आ जाती है. Right. उसके लिए आपको फिर मील्स की जरूरत नहीं पड़ती. Right. इन माई लास्ट 15 ईयर्स मुझे नहीं पता कितने सेशंस ऐसे हैं जिसमें कोई मील नहीं थी, अच्छा. राइट? बट एनर्जी ऑन द पीक. Okay. तो पता नहीं, शायद इसी को लोग कुछ कहते हैं, बट इन माई वर्ड्स एक इनविजिबल आप में एक एनर्जी, एक पावर आपको मिलती रहती है व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू. Okay, that's interesting. Okay, if you were not a motivational speaker, what would you be doing? दिस इज समथिंग मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं. Okay. मतलब मैंने ये थॉट कभी अपने आप को नहीं दिया कि अगर मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर नहीं होता तो मैं क्या होता. लेकिन अगर बहुत प्रैक्टिकल नोट पे मैं बात करूं, सो आई वाज परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग. Okay. My father wanted me to be an IS officer because family में I was like the top in the academics, you can say. So उनको था कि अगर वो academics में अच्छा है तो फिर you could go for any government exams or something like that. Right. So तो वो मुझे लगता है कि अगर ये मुझे इंस्पिरेशनल ये रास्ता मुझे अगर नहीं मिलता तो फिर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी IS ऑफिसर या समथिंग लाइक दैट, मुझे लगता है मैं वहीं कहीं पर होता. What is scientific career counseling as per you?
About the career counseling first. Normally, I met many people. Okay. They are giving career counseling to the students. Okay. So when I met them and discovered their process of career counseling, so what they are doing actually, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को कि अगर आपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स आपने दिए हैं, Right. तो अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो मेडिकल में आपके पास ये रास्ते हैं. Right. आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, आपके पास ये रास्ते हैं. राइट. तो पहले उनको एक रास्ता पता था कहीं पहुंचने का, अब उनको 10 बता दिए जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन और बढ़ गई है अब. Right. राइट. तो दिस इज समथिंग टू पास ऑन इंफॉर्मेशन ओनली, Okay. कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये 10 और रास्ते हैं. Hmm. साइंटिफिक इज समथिंग जहां पर एक डिफरेंस आता है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, Hmm. मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्लैरिटी तक लेकर आ रहा हूं. कैसे? मैं सबसे पहले ये फिगर आउट करूंगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल. Okay. तो जब मुझे आपके बारे में पता चलेगा, तभी मैं आपसे जो परफेक्ट मैच कर रहा है करियर पाथ, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा. Hmm. क्योंकि वो फिर मेरा काम हुआ ना, कि मैं आपके लिए कुछ फिगर आउट कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी दिस इज समथिंग जो आपके लिए परफेक्ट रहेगा. Hmm. आप पूछेंगे ये परफेक्ट क्यों नहीं रहेगा, व्हाई नॉट दिस पाथ? सो वी हैव आंसर्स, वी हैव लॉजिकल आंसर्स अगेंस्ट दैट, कि आपकी पर्सनैलिटी वैसा नहीं है, Okay. आपका इंटरेस्ट एरिया वो नहीं है, Okay. द करियर मोटिवेटर्स उस लेन में आपके लिए नहीं है. Hmm. राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वे. सो साइंटिफिक मीन्स टू से फर्स्ट वी विल do some research about an individual, Hmm. and then we will figure out the career path, and then the perfect match of both. So this is something very scientific. Yeah, I have heard of this terminology like career counseling, but Yeah. this scientific career counseling, absolutely it makes sense. Yeah. Because it happens like, if I am not fit for, say, science or English literature, but I am being told that, by my parents or by, external factors that I have to pursue this because, this is the ultimate thing you can do easily. So, when a scientific career counseling, comes in front of you, so it actually guides you whether you are made for this or not, whether your personality matches to it or not. True. So, True. absolutely. I mean, this is the new thing I have learned today. Very true. Very And true. you aptly said that it's more of confusion. Exactly. More of confusion rather than, guiding the direct path or, guiding in the right direction. True. So, Very that's true. right. Very Okay. And so I think if we talk about parenting, okay, so nowadays parent and child relationship, that's an important topic to be discussed. So could you please throw some light on the same, like? About parenting, very first of all in Indian society, Hmm. so there is a myth about it. We don't need to learn about parenting. What is parenting? Parents को लगता है कि इसमें सीखने जैसा क्या है. Mhm. हमारे माँ बाप ने जैसे हमें बड़ा किया है वैसे हम अपने बच्चों को बड़ा कर लेंगे. पेरेंटिंग की कोई क्लासेस आपको नहीं लगता होगा कोई पेरेंट्स लेने के लिए जाते हो. Right, absolutely. और इन 2.25 जब हम आज बात कर रहे हैं, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप सच में एक बहुत बड़ा, एक क्रिटिकल Hmm. आज की डेट में एक ऐसा एक फेज बन गया है कि अब पेरेंट और चाइल्ड की जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे. Hmm. पहले हम वेस्टर्न बात करते थे कि डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन आज हम इंडिया में उस चीज़ को फील कर रहे हैं. Hmm. पेरेंटिंग इज समथिंग दैट अ सेट ऑफ बिहेवियर, योर अप्रोच टूवर्ड्स योर चाइल्ड, राइट, कि आप उसे किस तरीके से आप उसके लिए एक एनवायरमेंट दे रहे हैं. Hmm. 49% इज समथिंग जेनेटिक्स, जो बच्चे को बनाते हैं. उसकी नाक कैसी है, वो दिखता कैसा है, कद काठी कैसा है, रंग कैसा है, बट 51% उसको एनवायरमेंट बनाता है. और वो जो एनवायरमेंट है, इवन इन द पर्सनल लाइफ और द प्रोफेशनल लाइफ, वो जो 51% है उसमें मैक्स टाइम जो है बच्चा पेरेंट्स के साथ होता है. Hmm. तो जो पेरेंट्स करते हैं बच्चा फिर उसी रास्ते पर आगे चलता है. Normally there are 4 type of parenting, Samita. One is something about the uninvolved parenting. Okay. Nowadays is something parents को लगता है कि हमारी अपनी भी तो एक लाइफ है. Hmm. So they don't have time for their kids. Hmm. Right? तो वो टॉयज दे देते हैं महंगे महंगे, बट टाइम नहीं देते हैं. राइट. तो फिर वो जो अनइन्वॉल्वमेंट आती है बच्चे की, तो उनको लगता है कि बच्चा अपने आप बढ़ रहा है. हाँ, बढ़ तो रहा है, लेकिन अनइन्वॉल्व अगर आप कहीं वहां नहीं हैं जहां बच्चे को टाइम की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, तो बच्चे की पेरेंटिंग तो हो ही रही है. आप नहीं कर रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया कर रहा है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं बिजी है.
राइट। गली में अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बिजी है, उसके फ्रेंड्स उसकी पेरेंटिंग कर रहे होंगे, पड़ोसी उसकी पेरेंटिंग कर रहे होंगे, रिलेटिव्स उसकी पेरेंटिंग कर रहे होंगे। Here I want to recall the story of महाभारत। जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो शांति दूत बन करके गए थे राजा धृतराष्ट्र की सभा में, तो दुर्योधन ने उनको कहा था कि मैं सुई की नोक बराबर उनको पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। अच्छा। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर ये राजा धृतराष्ट्र को उन्होंने एड्रेस किया था कि आप इस नौजवान की इस तरह की इच्छाओं पर हस्तिनापुर की बलि नहीं चढ़ा सकते, राइट। तो ये सुनने के बाद दुर्योधन ने अपने सैनिकों को कहा था कि आप भगवान श्री कृष्ण को जो है बंदी बना लीजिए। अच्छा। तो इतना बड़ा वाक्य एक शांति दूत के लिए जब आप करते हैं, प्रयोग में लेकर आते हैं, तो सच में सच के लिए एक सब हैरत अंगेज बात थी। तो जब ये पूरा वृतांत शाम को माता गांधारी को पता चला, तो वो क्षमा याचना के लिए भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में गई कि माफ कर दिया जाए कि क्योंकि इस तरह की बात बच्चे ने की है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उस वक्त माता गांधारी को एड्रेस किया था, वो बहुत एक पेरेंटिंग के लिए आज के समय बहुत बड़ी बात है कि माते ये क्षमा आपको मुझसे नहीं मांगनी चाहिए। अगर आपको क्षमा मांगनी ही है तो आप दुर्योधन के कक्ष में जाएं, क्योंकि जिस वक्त उसको आपकी जरूरत थी उस वक्त आप वहां मौजूद नहीं थे। प्रकृति ने आपको आंखें दी थी, लेकिन सिर्फ आपने अपना एक दायित्व निभाया है, पत्नी होने का, और इसीलिए आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और आपने पेरेंटिंग नहीं की। तो फिर मामा शकुनी को वहां मौका मिला और उन्होंने उसकी पेरेंटिंग कर दी। तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग इज समथिंग, आप वहां नहीं है तो कोई ना कोई तो मौजूद है। देन देयर इज अबाउट कंफर्ट पेरेंटिंग, जो आजकल बड़ा पैम्पर करते हैं पेरेंट्स बच्चों को, उनके लिए टॉयज देंगे या जो चीज़ उनको नहीं खाने की है वो उनको खिला रहे हैं। स्लीप साइकिल उनका बेकार हुआ है तो उनको टोकना भी नहीं है कि बच्चा बुरा ना मान जाए। इवन सम स्कूल जब सेशंस होते हैं तो मुझे टीचर्स एंड इवन द कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल जो मुझे बताते हैं कि कुछ पेरेंट्स इतने लाइक सेंसिटिव हैं कि वो बच्चा जिस बस में जाता है, ट्रैवल करता है, उसका भी एसी का टेम्परेचर चेक करने के लिए स्कूल में आते हैं। ओह माय गॉड, दिस लेवल ऑफ कंफर्ट पेरेंटिंग। तो जो बच्चा इतने कंफर्ट जोन में आपने रखा है, उसको अगर आप लाइफ में चैलेंजेस दे देंगे वो तो घबरा जाएगा, राइट। सो पेरेंटिंग इज समथिंग कि आप अपने बच्चे को क्या वो एनवायरमेंट दे रहे हो जिससे बच्चा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में और एक बहुत गहरा इंपैक्ट जो है वो आता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द पेरेंटिंग कि आप किस तरीके से कैसे अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं बच्चों की जिंदगी में। I mean, I was deeply, engrossed in your your statement. I mean, कभी सोचा ही नहीं हमने उस एंगल से। मतलब it's actually a very, it's much needed topic to discuss with, parents. It's much Exactly. needed. Third pillar of edu ecosystem is teacher. What should be the mindset of a teacher? About being a teacher nowadays, according to some reports, for more than 95% teachers, teaching is just a job. तो अगर आप जॉब माइंडसेट से आप स्कूल में हैं तो उनका पूरा इस चीज़ पे ध्यान रहता है कि कब स्कूल में आए, कब स्कूल से वापस जाएंगे, राइट। या फिर उनको जो सिलेबस मिला है बच्चों को करवाने के लिए वो उसको बस एक बार कंप्लीट करना है, राइट। क्लासरूम में वो डिफरेंट हैं, स्टाफ रूम में वो डिफरेंट हैं, सैटरडे संडे वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। सो आप एक टीचर हैं और टीचर, if there is a question about between a good teacher and a great teacher, but normally I would like to say कि जो mindset होना चाहिए, it's a responsibility. It is not something that कि आप स्कूल में गए और बस आप घड़ी देख के काम करते हैं और फिर आपको लगता है कि महीने के एंड में आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए। हम उस देश से हैं जहां पर गुरु और शिष्य की एक परंपरा हमारे यहाँ चलती आई है, जहां स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो टीचिंग, it is less about skill set and more about the mindset. And about the mindset, first जो मैं कहना चाहूंगा कि इस जोन से बाहर आना चाहिए कि एक जॉब है, और फिर आप अपने आप को कंपेयर करना बंद करेंगे उन सब लोगों से जिनके पास आपको लगता है कि उनका लाइफस्टाइल पता नहीं क्या है, वो कितनी सैलरीज ले रहे हैं, right. तो अगर आप इस तरह से उसको कॉर्पोरेट बना के रख देंगे और फिर आप इस तरह की भी स्टेटमेंट्स देंगे कि अ टीचर कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, तो फिर ये मैच नहीं करता। Absolutely. इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, तो वो जो एक आंसर्स गूगल से हमें मिल जाते हैं या फिर बड़े बुकिश होते हैं वो आंसर्स, उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकली भी हमें अपने आप से सोचना है कि क्या हम सच में
एक टीचर वाला काम जो है वो प्ले कर रहे हैं. Hmm. So I would like to say it's a responsibility, it's not a job. So what according to you are the three qualities of a teacher then? Being a teacher, तो नॉर्मली आपको स्कूल एक टाइटल दे देता है कि ठीक है कल से पढ़ाना शुरू करिए आप, Right. आपका सिलेक्शन हो गया तो आप टीचर बन जाते हैं. कोई पूछता है तो यू आर अ टीचर. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ ग्रेट टीचर. अ ग्रेट टीचर की अगर आप थ्री क्वालिटीज की मैं बात करूं, द वेरी फर्स्ट इज यू नो बीइंग एन इंस्पिरेशन. Okay. यू हैव टू बी अ रोल मॉडल. कि आप जो चाहते हैं कि बच्चा करे अपनी लाइफ में, सबसे पहले वो आपकी अपनी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए. आप उसे जी रहे हो अपनी रोजाना अपनी जिंदगी में, राइट? अभी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कई बार क्लास में ऐसा होता है कि बच्चा कोई क्वेश्चन कर लेता है और टीचर को उसका आंसर नहीं पता, और टीचर को ये पता है कि मुझे आंसर नहीं पता. अब ये नहीं है कि वो उसको किस तरीके से क्लास में उसको दिखाएंगे, बाहर में स्ट्रेटजी क्या यूज करें, क्या टैक्टिक्स यूज करें कि उस बात को जो है रखा जाए प्रॉपर तरीके से और वो कुछ आंसर भी कन्वे किया जाए. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि माइंडसेट, आप माइंड के लेवल पे क्या सोच रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. दिस इज समथिंग कि बच्चे ने कुछ ऐसा पूछा कि जो मुझे नहीं आया. क्योंकि अगर बच्चे को फिर इस तरह का पूरा एक एनवायरनमेंट मिलता है कि जी कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कभी लाइफ में किसी फेलियर का सामना आपको करना पड़ सकता है. अगर एक टीचर और पेरेंट भी इवन, क्योंकि ये ट्रायो है, छोटे छोटे बच्चों का आज हम देखते हैं कि 8th क्लास के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो कहीं से जंप कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं. ऐसा क्या था जो उसको लगा कि सब खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया. And this is very common these days. ट्रू. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग अ टीचर एज वेल, कि ये वहां से शुरू होता है कि आप एज अ पेरेंट ऑल्सो आप अपने बच्चे को ये जरूर कई बार फील कराएं कि इट्स ओके टू बी टू फेल समवेयर. आप परफेक्ट नहीं हो सकते. इट्स ओके अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता, लेकिन हम तो उसे हाइड करना चाहते हैं. आप उस पोर्शन को हाइड करते हैं, बच्चे को मैसेज देते हैं कि नहीं, पेरेंट्स को तो टीचर को भी सब दिया, आप परफेक्ट इवन, राइट? बच्चे को लगता है कि अगर कुछ फेलियर जैसा है तो सिर्फ मेरे से जुड़ा हुआ है. Right. So the very first quality to be an inspirational, to like be inspired. A great teacher is one who inspires, who not explains only, who not demonstrates only, inspires. Second thing is about leadership. Leadership is something कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं. जब आप लीड करते हैं, Right. और जब आप लीड करते हैं तो आप इस तरह का एक ऑरा क्रिएट करते हैं क्लासरूम में, इवन स्कूल एज वेल, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोएक्टिव होना होगा कुछ बहुत सारी चीज़ों में, राइट? आपको वो जो मैंने पहले बात की, आपको जॉब माइंडसेट से बाहर आना होगा. क्योंकि जब लीडर आप बनते हैं तो आप एक बनी हुई प्रक्रिया में काम नहीं कर सकते. आप एक बॉसिज्म वाला सेटअप वहां नहीं बना सकते. आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करनी पड़ती हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट बीइंग अ लीडर एज वेल, राइट? आप उस माइंडसेट से आप बाहर हैं, बच्चों को आगे लेकर आते हैं, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट. एंड द थर्ड वन आई वुड लाइक टू मेंशन, इट्स अबाउट respectful attitude nowadays. Okay. We have to be respectful towards the students. नॉर्मली टीचर्स को होता है कि बच्चे हमें रिस्पेक्ट दें, होता ही है. कॉरिडोर्स में भी उनकी जो बहुत स्लो वॉक होती है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, अच्छा लगता है सबको. बट इट इज समथिंग कि आप बच्चे को रिस्पेक्ट दें. और बच्चे को आप रिस्पेक्ट तब देते हैं जब आप इस बात को समझते हैं कि उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है. कई बार पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं बच्चों को बड़ा हो गया है. यस, बच्चे बड़े हो गए. 13+ की जो AEP प्रोग्राम्स की हम लोग बात करते हैं, एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स, तो उन प्रोग्राम्स में हम यही बात करते हैं कि बच्चे बड़े हो गए और ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को समझना होगा. राइट. अब वो इन चीजों को समझते हैं कि कब उनको इंसल्ट फील होता है, कहां पर उनको रिस्पेक्ट फील होता है, राइट? तो जब भी टीचर्स को अगर किसी बच्चे में कोई कुछ कमी नजर आती है तो आप उनको हमेशा अकेले में बैठ के समझाएं. उन्हें पब्लिक में आप उनको उनकी गलती मत दिखाइए. वो आपके साथ मोर कनेक्ट फील करेगा. अगर आपने किसी की प्रशंसा करनी है तो पब्लिक में करिए. किसी की कमी बतानी है तो एकांत में बताइए. बस ये थंब रूल रहता है. तो इट इज समथिंग, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, और जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो वहां से एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है. राइट. हम अपनी निजी जिंदगी में देखें, हमारे रिश्ते उन्हीं के साथ है जो हम जहां से हमें इज्जत मिलती है.
So it's not about perfect teaching, it's all about a perfect relationship between a teacher and a student. और ये बनाने के लिए शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ती है. So these are the three So it's qualities. like every person has got an invisible collar, respect me. Exactly. So we need to follow that. Very true. Okay. And what do you think about, online writing platforms? And do you know any one of them like these days, like, where children can write books? Very first thing about writing कि बहुत सारे बच्चों का होता है कि उनको कुछ ना कुछ लिखना होता है, राइट? और ये आज के टाइम में थोड़ा ज़रूरी भी है जब आपके पास सोशल मीडिया चारों तरफ है, Absolutely. राइट? कि वो कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियोस, रील्स और यहाँ पर अपना टाइम निकालते हैं, तो बहुत क्रिएटिविटी है राइटिंग वाला. सो ऑनलाइन राइटिंग प्लेटफॉर्म्स आर recently I have just gone through a platform, Bookalooza. Okay. So this is one of the, I think so, best platform, Okay. which is integrated with AI, artificial intelligence, जहाँ पर बच्चा जो है वो सिर्फ अपने थॉट्स रखता है और आपको कंप्लीट एक उसको मतलब एडिट करने के पार्ट से लेके उसको पब्लिश करने तक, तो आप एक बहुत यंग ऑथर जो है आप निकल के बाहर आ सकते हैं वो स्मॉल एफर्ट्स के साथ. सो Bookalooza पे मुझे लगता है कि आई वुड जस्ट रिकमेंड this one platform to the young writers. So to all our viewers, do check out the platform bookalooza.com and you can inspire your child to write his dream book on this platform. It's super easy, hassle-free publishing, and it's very pocket-friendly. Just check it out. Okay. If someone has only 10 minutes for, self-improvement, what would you suggest them? Very first thing is about if they just have 10 minutes. तो इसका मतलब ये है कि 23 hours and 50 minutes. Yeah. तो उनके पास बहुत कुछ है करने बहुत कुछ है. राइट. अगर उनके पास बहुत कुछ है करने को तो 10 मिनट में तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि बस आप इतना भर चुके हो जो 23 घंटे 50 मिनट में खुद को 10 मिनट में आप अपने आप को सिर्फ खाली कर लीजिए. एटलीस्ट वो 10 मिनट ऐसे होने चाहिए जब आपके पास कोई थॉट ना हो, कुछ करने को नहीं है, इवन कुछ सोचने को भी नहीं है. बट मेंटल चर्निंग तो होती ही रहती है. यस, बट फर्स्ट टाइम होती है जब अगर आप अपने आप को बैठे हो ये करने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट इट टेक्स प्रैक्टिस, राइट? आप जब वेरी फर्स्ट टाइम बैठोगे, इतने भरे हुए हो आप, तो आपको एक मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने बहुत भर लिया खुद को, मुझे थोड़ा खुद को खाली करना है, मुझे खुद को फिर से रिजुविनेट करना है, रिचार्ज करना है, एटलीस्ट उस 10 मिनट में, राइट? तो अब वो 10 मिनट में खुद को रिचार्ज करने के लिए आपको चाहिए कि ड्रॉप एवरीथिंग, जो कुछ भी चल रहा है ड्रॉप एवरीथिंग. इवन मुझे याद है कि एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ में जब मुझे लगता था कि मैं बहुत बिजी हूँ. तो मैंने मोबाइल में नॉर्मल एक रिमाइंडर सेट किया था जहाँ पर मुझे वो लगभग हर 2 घंटे में आता था, ड्रॉप एवरीथिंग, से थैंक टू गॉड एंड जस्ट रिलैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स. राइट. तो चाहे मैं कहीं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, किसी से मीटिंग में नहीं हूँ, अदरवाइज उसके अलावा अगर मुझे लग रहा था कि ठीक है मैं आराम से 5 मिनट निकाल सकता हूँ तो मैं फिर ड्रॉप करता था एवरी चीज़. तो 10 मिनट अगर आपके पास है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप बैठ जाइए. आपको 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको लगेगा कि वो 10 मिनट का जो टाइम है ना, अब वो कम पड़ रहा है, क्योंकि वो एक टेस्ट आपको फील आना शुरू हो जाता है. आप खुद को ज़्यादा रिजुविनेट करना चाहते हैं तो वो 10 मिनट वाला विंडो फिर बढ़ता चला जाता है. और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है लाइक अगर हिंदी में बोले तो लोग व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त है. हाँ. मतलब जहाँ इधर भी उधर भी काम It's नहीं है. BWW, busy without work. Yes, absolutely. Yeah. If you could have dinner with any historical figure, who would you choose? Historical figure, see, I'm a firm believer in God. Okay. My spiritual bent of mind is something, very high. So अगर मुझे हिस्ट्री जाना है और मुझे लगता है कि मुझे अगर किसी के साथ बैठने का मौका मिले, राइट, तो आई वुड प्रेफर इवन विद गौतम बुद्धा. Okay. राइट, कि एटलीस्ट मैं उनसे वो एक समझ पाऊँ कि किस तरीके से वो उनके पास सब कुछ था अपनी लाइफ में, और वहाँ से फिर वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे गए और फिर उन्होंने खुद उसको डिस्कवर किया, राइट. और क्या होता है एग्जैक्टली वो जो एक ओरा होता है, इट वाज नॉट समथिंग अबाउट वर्ड्स ओनली. वो जो ओरा फील करते हैं आप किसी ऐसे पर्सन के पास बैठ के जो एनलाइटन होता है. सो आई जस्ट वांट टू फील द सेम कि वो कैसा होता है. So out of curiosity, I wanted to know, I mean, are you also into chakra meditation and everything? Do you do that? Something, this is a very, detailed topic we can discuss upon. But normally I would like to say, I believe in
the top of the spirituality. Okay. The top of the spirituality is something you have to connect with the God. Meanwhile, there are many things like you are saying about the chakra activation and all these things. But when you are in the process, तो आपको बहुत सारी चीजें रास्ते में अपने आप मिलती चली जाती हैं, पर आपको तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपको वो चीज नहीं मिलती जहां तक बिल्कुल एंड वो एक चीज होती है. दैट इज समथिंग यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द गॉड, राइट? बट आई थिंक ये सब एक्टिविटीज के लिए भी ऑल्सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डिवोशन एंड आई डोंट नो द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल्स वी हैव टुडे. इसके लिए हमारे पास टाइम है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द यंग जनरेशन. सो आई मीन दे हार्डली हैव अ लुक एट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. दे आर मोर इनटू लाइक reeling or on YouTube and watching movies and all that stuff, but they are not into like meditation, reading books or writing stories or such kind of stuff. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अगर बच्चे रील देख रहे हैं, इफ दे आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी और जस्ट मोबाइल लॉन्ग आवर्स, राइट? तो एक बात तो बहुत साफ है, और वो ये है कि वो खुद को रिलैक्स करना चाह रहे हैं. जो लोग आप सिनेमा थिएटर्स में देखते हैं, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में मूवी देखने जाते हैं. अदरवाइज बहुत लोगों को होता है चलो यार बहुत अब आजकल मूवी देख के आते हैं, या जब उनको लगता है बहुत भर गए हैं, अब उनके हाथ में मोबाइल है तो वो रील. आप समझ रहे हैं? मेडिटेशन भी एक वही चीज है जो आपको रिलैक्स करती है, बट उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है. और वो जो रस है, क्योंकि थिएटर वाली मूवी 3 घंटे बाद खत्म हो जाती है, राइट? लेकिन जो मेडिटेशन है वो आपको लॉन्ग लास्टिंग वो एक इम्पैक्ट, वो रिजल्ट आपको देता है. बट जैसे मैंने कहा कि एनवायरमेंट अगर नहीं है, उनको दे डू नॉट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, दे डू नॉट नो कि वो एक्चुअल में आपको क्या एक फील आपको आता है उस पे जाने पे. तो फिर आप ये जो छोटे छोटे रस आप चीज़ों में लेते हो, रील्स देखना, या फिर आप टीवी के सामने बैठे हो, या आप मूवीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ में आप घंटों बिता रहे हैं, राइट? ये आप अपने आप वो चीज़ खत्म होना शुरू हो जाती है. अभी अगर मेरी मुट्ठी में 10 रुपये हैं, राइट, और अगर कोई उसे खोलना चाहे तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास 10 रुपये हैं वहाँ पे. बट अगर आप सामने से मुझे 1,000 रुपये का नोट दे रहे हैं तो मेरी मुट्ठी अपने आप खुल जाती है. बट पहले मुझे वो नज़र आना चाहिए कि सामने 1,000 है. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों का एंटरटेनमेंट वाले कुछ चीज़ें लग रही हैं, इससे बड़ा कुछ है मेडिटेशन में. बट इसे समझने के लिए पहले वो एक एनवायरनमेंट, वो एक अवेयरनेस होनी चाहिए. अगर आपको वो अवेयरनेस हो जाती है तो फिर आप कहते हैं छोटी चीज़ों को आप साइड करते हैं, फिर आप कहते हैं वही चीज़ सामने आनी चाहिए जिससे लाइफ में फिर वो कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड ऑल दैट स्टफ. फिर आप दैट्स अ बिग लीप. ओके, सो आर यू एन अर्ली बर्ड और अ नाइट आउल? अर्ली बर्ड. व्हेन डू यू वेक अप? सी, नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे के आसपास, जैसे हम समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, राइट? As I normally I said, I am something more into spirituality, right? And I believe in some. It's not something about the spirituality of कि आप 3 बजे उठ रहे हैं तो you are spiritual. Not that. Even अगर आप 3 बजे 3:30 बजे की विंडो में आप उठते हैं और एक बार आप सिर्फ गेट खोल के बाहर जाइए आप, राइट, यू विल फील कि देयर इज समथिंग, कि अब आपको भीतर जाना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. और मैंने एक चीज़ कही, आपको एकदम से आपकी आंखों के सामने से पर्दा नहीं हट जाता कि पहले अटेम्प्ट में आपको फील होता है, आपको वो कनेक्शन फील होता है. कुछ अटेम्प्ट्स लगते हैं, और कुछ अटेम्प्ट्स के बाद जब आप 10वें 12वें अटेम्प्ट में बाहर खड़े होते हो उस विंडो में, राइट, तो फिर आपको लगता है कि ये बेस्ट टाइम है और ये मुझे स्किप नहीं करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि रोज एसेट्स मिलते हैं आपको अर्ली विंडो में, मॉर्निंग विंडो में. अगर आप लेट उठ रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो सारा एसेट्स खो रहे हैं आप. सो आई बिलीव दैट वे कि लेट नाइट वाला, क्योंकि अगर आप लेट रात को सोएंगे तो लेट ही उठेंगे, तो फिर ट्रू है कि फिर आप लेट ही उठेंगे. अगर आप लेट उठ रहे हैं तो फिर आप बहुत कुछ वो खो रहे हैं जो फिर आपको मिलता नहीं है कहीं, और वो बहुत नेचुरल है. तो वो कई बार मैंने देखा है कि वो चीज़ गुम हो गई. मतलब इवन समवेयर लाइक कि मैं पहले देखता था कि राइजिंग सन टाइम क्या है एग्जैक्टली, तो पता चलता था कि वो 6:30 है. कई बार ऐसा होता था कि 6:45 आँख खुली तो बहुत गिल्ट फील होता था, ओ आई मिस दैट. क्योंकि अब जाकर के आप वो सन गेज एंड और समथिंग आप नहीं कर सकते, अब आप वो चीज़ नहीं देख सकते, राइट? अब वो कहता भाई तुम्हारा टाइम गया अब. तो वो जो टाइम होता है कि एग्जैक्टली जब सन, वो जो है ना, वो जो एक नीला आसमान है, जो सन बाथ मैं कहूँगा आप लेते हैं, वो
बहुत एक एसेट वाला फील मेरे लिए है, अभी दिस इज़ माई पर्सनल समथिंग। तो मुझे लगता है कि वो टाइम तो मैं मिस नहीं कर सकता, और वो टाइम अगर मिस नहीं कर सकते तो फिर आपको रात को थोड़ा सा जल्दी सोना पड़ता है और फिर जल्दी उठना पड़ता है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस इंस्पिरेशन फॉर मी बिकॉज मैं तो नहीं उठ पाती इतनी जल्दी। आई डोंट नो व्हाई बट आई ट्राइड माय बेस्ट बट मैक्स आई कैन वेक अप अर्ली एट अराउंड 6, not before that, सो or 6:30, but I feel very tired throughout the day. I don't know how my body is. इट इज़ समथिंग, इट्स नॉट समथिंग अबाउट कि आप 6 बजे उठ रहे हैं या फिर आपको जैसे रोबिन शर्मा की एक बुक है 5 AM, राइट? Hmm. तो कुछ लोगों को है कि बहुत जल्दी उठना चाहिए। इट इज़ नॉट समथिंग, कोई हैबिट नहीं है ये, Hmm. फ्लेक्सिबल रहता है, कई बार थोड़ा लेट भी चलता है, Hmm. कई बार क्योंकि हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल है Hmm. थोड़ा जल्दी भी चलता है, Hmm. बट इट इज़ समथिंग कि आपको एक वो जो बच्चों को हम जो है बड़े चाइल्डहुड में हम वो पढ़ाते थे, है ना, Right. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हाँ वो मिसिंग है वो आजकल। मिसिंग है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि ड्रॉप एवरीथिंग, शार्प 9। फिर आपको एक आदत बन जाती है कि नहीं, मतलब आपकी बॉडी खुद कहना शुरू करती है भाई अभी तुम 9 बजे तुम्हें सोना है। तो फिर आप होता है कि फिर आप आराम से 5 बजे 4 बजे या फिर आपकी आंख जो है वो खुलना शुरू हो जाती है इन दैट मूड की नहीं है मुझे उठना ही है। अब वापस से फिर बेड पे जाने का आपका नहीं होता। तो डेफिनेटली टेक्स प्रैक्टिस, बट मेरी अपने लिए वो जो सुबह वाला विंडो है मुझे लगता है मैं उसे स्किप नहीं कर सकता, मिस नहीं कर सकता। Okay. If a movie was made about your life, who would play you? सी, एक क्वेश्चन आपने पूछा था वो कि अगर आप एक इंस्पिरेशनल स्पीकर नहीं होते तो आप क्या होते। तो वो इंजीनियरिंग तो ठीक है क्योंकि वो एक बना बनाया रास्ता था, बट अगर मुझे फिर से बाय चॉइस कुछ करने का होता तो मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बचपन में एक्टिंग में भी था। अच्छा। तो अगर ये कुछ करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं इस रोल को प्ले करूंगा खुद ही अपने लिए। Okay. हाँ जी। Okay. या What's your favorite way to relax? मेडिटेशन। Meditation. How long do you do your meditation? 30 minutes, 20 minutes? Why? स्टार्टिंग में होता था कि मैं काउंट करता था, अच्छा. अब मैं काउंट नहीं करता। Is that so? यस, स्टार्टिंग में 10 मिनट्स हैं 15, क्योंकि देयर वाज समथिंग इन मी कि मुझे इतना इतने आवर्स बैठना है या इतने आवर्स मुझे कंप्लीट करना है। तो फिर मैं उसके लिए 10 मिनट्स बैठ गया, फिर 15 मिनट्स का सेटिंग होता था, फिर कभी 5 मिनट का सेटिंग होता था। तो वो फिर मेरी डायरी में वो 5+10+5, ये मुझे लगा कि यार मैं कितना ट्रैक करूँगा इसे अब। तो मैंने वो गोल ही छोड़ दिया कि मुझे इतना अचीव करना है। इट इज़ समथिंग आपको सिर्फ बैठना है, मन में होना ही नहीं है कुछ, राइट? बिकॉज मेडिटेशन इज समथिंग कि ना कुछ करना है और ना कुछ करने का सोचना है। तो वो फिर रहना कि वो जो टाइम माइंड में रहता था 5-10 मिनट्स वो ख़त्म किया। अब ऐसा है कि ये बैठे हैं तो सिर्फ बैठे हैं। अब कितनी देर बैठ गए मैं इस चीज़ का हिसाब किताब मुझे लगता है मैं नहीं रखता, और मेरा मन भी नहीं होता देखने का कि मैं कब बैठा और मैं कब उठाऊँ। सो इट इज़ समथिंग एंड बहुत अच्छा फील होता है। Do you believe in luck or hard work? ओनली हार्ड वर्क। लक इज समथिंग जो मुझे अपने लिए मुझे समझ में नहीं आता कि Okay. क्या है वो एग्जैक्टली। बट कई लोग होता है ना कि हार्ड वर्क कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। इट इज़ नॉट अबाउट हार्ड, सी, इट इज़ नॉट गेटिंग अबाउट गेटिंग रिजल्ट्स। मेरा पर्सपेक्टिव उस पर थोड़ा डिफरेंट है। ओके। आपको कुछ मिल जाता है और एक आपने कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देती है? हासिल किया। हासिल किया है। तो मैं लक और हार्ड वर्क में से ये इसको थोड़ा आसान करता हूँ, मिलना और हासिल करने में। मुझे लगता है मिलना एक लक है, किसी को मिल गया। हम क्या कह देते हैं किसी को, देखो उसने इतने हार्ड वर्क भी नहीं किया फिर भी मिल गया। मिलना इज समथिंग कि मिल गया आपको, आप डिजर्व नहीं करते थे। हासिल करना मतलब देखो इन्होंने किया, उसकी सब बात भी करते हैं। और वो जो उस प्रोसेस में आप जो बनते हैं, मिलने के प्रोसेस में आप कुछ नहीं बनते, हासिल करने के प्रोसेस में आप कुछ बनते हो। कुछ अपने आप पर काम करना पड़ता है, कुछ जगह अपने आप को चोटें मारनी पड़ती हैं, सहनी भी पड़ती हैं। तो वो जो फिर बनकर आप बाहर उभरते हो, वो उसको जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उससे कई ऊपर है वो चीज। आई एम जस्ट लुकिंग एट द प्रोसेस नॉट एट द रिजल्ट्स, ओके। राइट? सो प्रोसेस उसका ऐसा है जो बेशकीमती है। तो आई बिलीव इन दैट प्रोसेस। I have heard that, IIT Baba blames his parenting. So, what is your view on this? सो वी डोंट नो अबाउट हिज फैमिली एनवायरनमेंट कि वो क्या है, कैसा था। बट जो बात वो कह रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है और जिसमें मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आप घर में बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट देंगे, राइट,
उसका एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बच्चे पे जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब हर कोई इंडिपेंडेंट होता है, जब उसको लगता है कि मैं अब अपनी लाइफ को अपने तरीके से डायरेक्ट करूंगा, जब इस पे बहुत प्रेशर हो जाता है। अब यहां बहुत प्रेशर हो गया, अब इससे आगे वो नहीं जा सकता, राइट? तो हमेशा फैमिली में जो एनवायरनमेंट रहना चाहिए वो ऐसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए कि आप बच्चे को ये सोच के देखते हैं कि बच्चे की अपनी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं, बच्चे की अपने कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, उसके कुछ अपने लाइक्स हो सकते हैं। अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उसे सुनने के लिए आप वहाँ मौजूद हैं। अगर आप बिल्कुल बच्चे को स्ट्रिक्ट, जिसे हम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कहते हैं एक्चुअली में, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में आप बच्चे को बताते हैं आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए, कब बैठना है, कब उठना है, कोई आए तो कैसे मिलना है, कितनी देर मिलना है, फिर अपने रूम चले जाना है। एक रोबोट की तरह आप उसको चला रहे होते हैं। इवन कई बार आपने देखा होगा शादियों में भी आप देखते हैं बच्चे कुछ उठा रहे होते हैं, मम्मा को देखते हैं पहले, खाऊं या ना खा लूं, ये कर लूं। तो वो बच्चे की अपना जो क्रिएटिव माइंड है ना वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसको हर जगह से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, वो इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है, एक फियर, एक डर उसके माइंड पे चला जाता है। सो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के मैं फेवर में नहीं हूँ, अगर वो कहीं पे भी होती है तो। पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और फिर बच्चे कुछ भी रिजल्ट्स लेकर के बाद में उनको लगता है इतना कुछ प्रेशर है माइंड पे तो इसको रिलीज करते हैं, तो डेफिनेटली फिर उसके लिए वो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और संत महात्मा, पता नहीं, फिर आपको पता है एक दुनिया, अलग दुनिया शुरू हो जाती है। Okay, let's have some fire round questions. Yeah. What's the most overused word? थैंक गॉड। Okay. And if you were a meme, which one? In every situation you can say this is fine. Okay. You just calm and composed every time. First celebrity crush. In my childhood, जब वो यूज्ड टू सी करिश्मा कपूर दैट टाइम, Okay. तो मुझे लगता था कि नहीं ये एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और इनके साथ मुझे, मतलब कोई मूवी आती है तो उस तरीके से मुझे जाना है, तो अच्छा. यू कैन से करिश्मा कपूर। Okay. Strangest thing in your fridge. नो आइडिया अबाउट दिस, One thing you would ban forever. नो आइडिया अबाउट दिस। Okay. Your favorite movie. माय फेवरेट मूवी इज थ्री इडियट्स, यू कैन से। Favorite actor. अजय देवगन। Best thing to find in your pocket. बेस्ट थिंग स्लिप्स। Okay. Worst thing to find in your pocket. इवन स्लिप्स। Okay. बिकॉज देर कुछ ऐसी स्लिप्स होती हैं जिनको जब आती है, मैं लाइक पॉकेट से बाहर निकलती हैं, तो मुझे लगता है वाह यार ये आज बहुत सही टाइम पे मिली है मुझे। और कई बार बहुत सारी ऐसी अनवांटेड स्लिप्स होती हैं, वो लगता है क्यों यार ये पॉकेट में है। Okay. A new holiday you would invent. इट्स नेचर डे। Okay. One word for this podcast. अमेजिंग। What, according to you, is the importance of parent and, school management relationship? सी दिस इज अ ट्रायो, Okay. like students, parents and teachers, school management you can say. Normally पेरेंट्स और टीचर्स का जो मीटअप है वो पीटीएम पे होता है, Hmm. और साल में पीटीएम होती है सिर्फ 3 या 4 बार। तो आउट ऑफ 365 डेज आप टीचर से मिलते हैं पेरेंट्स, और टीचर्स पेरेंट्स से मिलते हैं सिर्फ 3 या 4 बार। Hmm. उतने में उनकी रिलेशन बिल्ड होना, इट्स समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसका फायदा बच्चा उठा जाता है, राइट? Absolutely. क्योंकि अब बच्चा घर में आके आपको बहुत सारी वो स्टोरीज बताएगा जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। Hmm. आजकल पेरेंट्स भी कुछ इस तरीके से हैं, अब कोई पॉजिटिव बात वो करेगा तो शायद पेरेंट्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, Hmm. लेकिन अगर वो कोई नेगेटिव बात कर ले, मम्मा आज मैम ने ये बोला वो बोला, तो वो जो किचन में बर्तन वॉश कर रही हैं जो मम्मा है, वो बिल्कुल कान उधर लगा के रखते हैं, सब कुछ छोड़ के आएंगे बेटा क्या हुआ, बिकॉज कंफर्ट पेरेंटिंग भी आजकल चल रही। तो उनको लगता है कि नहीं जो टीचर्स है उन्होंने कुछ गलत किया है, Hmm. स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कुछ अच्छा नहीं है, वो जो एक ट्रस्ट वैल्यू है वो कम होती है। सो हियर आई सजेस्ट कि जब आप सिर्फ पीटीएम के भरोसे मत बैठिए, आप नॉर्मली स्कूल में भी आइए, पेरेंट टीचर्स मिलिए, टीचर्स को भी चाहिए वो पेरेंट्स को अपने पास बुलाएं विद इन एवरी 15 डेज एटलीस्ट, कि एक बार आप आएं, मंथ में कम से कम आप 1 या 2 बार आप जरूर आएं। तो जब आप मिलते हैं और बच्चा पूरा डिस्कशन का टॉपिक सेंटर होता है, तो फिर अब वो जो इतनी सारी बातें वो छुपा सकता था, झूठ बोल सकता था, अब वो सब चांस उसके पास खत्म हो गए, और एक ट्रैक बना रहता है इससे। Hmm. जब स्कूल, क्योंकि दोनों का एक ही गोल है, स्कूल भी चाहता है कि बच्चा जो हमारे स्कूल में पढ़ रहा है वो अच्छे रिजल्ट्स लेके बाहर आए, Hmm. स्कूल का नाम हो,
पेरेंट्स भी चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लेके यार अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे, गोल दोनों का एक ही है, पर दोनों का ना मिलने का फायदा बच्चा उठा जाता है, मिलने से वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, Right. और एक टोटल फोकस बनता है बच्चे पे। So, which one is the best parenting style that parents should adopt? दिस इज समथिंग अबाउट स्मार्ट पेरेंटिंग। Okay. स्मार्ट पेरेंटिंग इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड लव, Okay. राइट? तो बहुत बैलेंस्ड वे में चलता है ये। अगर घर में किसी ने थोड़ा सा डांट दिया तो कोई प्यार करने वाला भी है, कोई प्यार कर रहा है तो कोई थोड़ा डांटने वाला भी है। एक बैलेंस्ड अप्रोच जिसे हम लोग कहते हैं, वो बिल्कुल कंफर्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट या अनइन्वॉल्व उस तरह का वो अप्रोच नहीं रहता। तो स्मार्ट पेरेंटिंग इज समथिंग कि आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन भी देते हैं, आप उसको प्यार भी देते हैं, बच्चे को टाइम भी देते हैं स्पेसिफिक, राइट? बच्चे को सुनते हैं। तो दैट्स आई कॉल्ड the combination of everything. This is smart parenting. So, what mistakes people normally do while choosing a career, and what are the consequences? Normally in Indian society, we can say कि जो common mistakes होते हैं, सबसे पहला तो ये होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा है तो हमारे सपने पूरे करेगा, तो वो अपने सपने पूरे करने के लिए पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि मैंने अपने बच्चे को ये बनाना है। बच्चा क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ कैसे, ना कोई लेना देना नहीं। इवन अपने घर का जो सबसे पढ़ा लिखा सदस्य है उसके सामने बच्चे को बैठाएंगे, वो भी तुम्हें ये बताएंगे तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। पेरेंटल प्रेशर यू कैन से। न सेकंड इज पीयर प्रेशर। अब 10th अगर आपका पास ऑन हुआ है तो आप चाहते हैं कि मुझे अब क्या स्ट्रीम लेनी है, तो बच्चों को लगता है कि मेरा फ्रेंड मेडिकल में जा रहा है तो मुझे भी मेडिकल में जाना है, मेरी फ्रेंड कॉमर्स में जाएगी तो मैं भी कॉमर्स में जाऊंगी। अब वो ना दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से बैठ सकते, तो पीयर प्रेशर होता है। Yeah. थर्ड समथिंग इज अबाउट द मनी माइंडसेट। ये आजकल बहुत है। Right. आप किसी भी करियर का चुनाव करते हैं इस बात पर कि वहां से पैसा कितना बनने वाला है। यस, पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट नॉट द ओनली फैक्टर। अभी आप समझे कि एक पैसा देख करके आप सिर्फ किसी करियर का अडॉप्ट कर लेंगे तो आपको ये नहीं पता कि वहाँ डेली बेस पे वर्क नेचर क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, Absolutely. चैलेंजेस क्या आएंगे। यही वजह है कि लोग फिर हर तीसरे दिन या हर एक महीने में को अपनी जॉब को स्विच करते हैं, क्योंकि एक टाइम पे उनके लिए पैसा फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहता। उनको लगता है सुकून मिलना चाहिए लाइफ में। तो मेंटल सेटिस्फैक्शन डिसअपीयर हो जाता है। एग्जैक्टली। एंड समथिंग अबाउट इन द लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स इज कि आजकल वो एस्ट्रोलॉजर वाला चल रहा है, हर कुछ उनसे पूछो, तो पंडित जी से पूछेंगे बताइए पंडित जी बच्चा क्या बनेगा क्या, तो वो फिर चक्र घुमाएंगे और वो बताएंगे कि आपका बच्चा क्या बनेगा। सो दिस इज समथिंग, दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स यू कैन से। और इससे फिर बच्चे का क्या होता है कि करियर जो है, आप 7-8 घंटे तो दिन में काम करते ही हैं, राइट। तो लगभग 1/3 ऑफ योर डे आप अपने काम को देते हैं। मीन्स टू से 1/3 ऑफ योर लाइफ आपके प्रोफेशन को जाने वाली है। तो अगर आपका एक गलत चुनाव आपकी पूरी 1/3 जिंदगी पर 100% इंपैक्ट डालता है, और वो जो 1/3 ऑफ लाइफ है वो आपकी रिमेनिंग 2/3 लाइफ को भी इंपैक्ट करती है, क्योंकि आप सुबह उसी काम पे जाना और शाम को उसी काम से वापस लौटना आपके लिए प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट? तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होना, पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि फैसला हमारा तो था ही नहीं, हम तो एक रेस में हैं, राइट? तो वो जो नॉर्मली कहते हैं ना कि मछली और बंदर की अगर आप रेस लगवाएं कि पेड़ पर कौन चढ़ सकता है, तो ये गलती उसकी है जिसने रेस सेट की है, प्लेटफॉर्म सेट किया है एक्चुअली। क्योंकि यही रेस अगर पानी में हो तो रिजल्ट फिर डिफरेंट हो सकते हैं। बट एनिमल्स का क्या है कि उनका दिखता है फिजिकल स्ट्रक्चर से, हाथी है वेट उठा सकता है, बट यही चीज अगर आप ह्यूमंस में देखेंगे तो सब हूबहू एक जैसे दिखते हैं। हमें लगता है कि जो आप कर सकते हैं वही मैं भी कर सकता हूँ, बट सबकी स्ट्रेंथ और सबकी कैपेबिलिटीज जो है डिफरेंट होती हैं। अकॉर्डिंगली फिर हमें इन मिस्टेक से बचना चाहिए, और एक साइंटिफिक करियर काउंसलिंग के थ्रू हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि किस रास्ते हमने को जाना चाहिए। So it's time to wrap up the episode now. What an incredible conversation it was. And that was Mr. Sameer Rathi. And he was, in fact, I would say he is a powerhouse of, wisdom, energy, inspiration, and motivation. And if you felt that spark, so don't let it, fade away. Actually, just, apply it, act on it, and lead with it. So do follow our channel Voice of Leadership, and thank you for watching. Thank you so much, Amita, for inviting me, for giving me this opportunity. My pleasure, sir. This is something my first experience, right? So I felt कि वो बिल्कुल जो बातें हमारी हुई हैं, it is something heart to heart. I felt it.
somewhere. So again, thank you so much for giving this opportunity. My pleasure, sir. Thank you so very much.